Yes. So what we want to do today, क्या करना है आज हमने? We will do some examples related to the Cauchy's inequality, Schwarz inequality. So you know both the Schwarz inequality and Cauchy's inequality. So what we want to prove for Hilbert space L2n, prove that. क्या prove करना है? What we want to prove? Prove Schwarz inequality using Cauchy's inequality. Schwarz inequality prove करनी है और Cauchy पे पहुंचना है. So first of all, we will take the vectors x1, x2, xn and y is equal to y1, y2, yn be any vectors in L2n, right? Then by Cauchy's inequality. कॉची को यूज करके स्क्वार्ट्स पे पहुंचना है. आपको पता है कॉची जो है वो नॉर्म में आती है और जो स्क्वार्ट्स इनइक्वालिटी है वो हिल्बर्ट स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में आती है. So you know what is the Cauchy's inequality? This is summation I running from 1 to n mod of xi yi. This is less than or equal to summation I running from 1 to n. This is actually norm of x and this is norm of y. ठीक है जी, ये norm of x है और ये क्या है, norm of y. Now, by definition of the inner product in L2n spaces, so it is defined as summation I. And if you will take any two vectors x and y, then how the inner product of two vectors will be defined? This is summation I running from 1 to n xi yi conjugate, right? So where x and y they are coming from L to n. Now we will take the mod. हमने mod ले लिया, ठीक है, mod यहाँ पे भी आ गया. अब mod जब अंदर जाता है समेशन में तो वहां लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, राइट? अब प्रोडक्ट में मॉड है तो सिंगल सिंगल पे मॉड आ जाएगा, वहां पे इक्वालिटी ही रहेगी. नाउ वी आर डूइंग द कैलकुलेशन. सो अब xi के ऊपर मॉड आ गया, yi के ऊपर भी मॉड आ गया, राइट? सो व्हाट इज zi कॉन्जुगेट? सो zi कॉन्जुगेट हो, z कॉन्जुगेट हो या z कॉन्जुगेट हो, दोनों ही हो अगर, तो दोनों का जो मॉड है वो सेम आता है, ठीक है. सो यहाँ पे ये आप देखिए बुक में, यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी फॉर ऑल एक बात लगाई है, इक्वालिटी सेंटर में आनी है. यहाँ पे आई विल मार्क हियर, इक्वालिटी यहाँ पे आएगी. क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? इक्वालिटी कहाँ पे आएगी? से यस और नो. ये इक्वालिटी बच्चे यहाँ पे आएगी, हियर दिस वन, इस जगह पे आएगी, ठीक है. हियर यू हैव द साइन ऑफ इक्वालिटी. ये लो मैंने लगा दिया वहां पे, ठीक है. सो आगे चलेंगे अब. सो उसके बाद आपके पास क्या आ गया? व्हाट यू हैव गॉट? सो अगले स्टेप में देखिए क्या किया इन्होंने. अगले स्टेप में समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n. बेटा मैं स्क्रॉल करती हूँ स्क्रीन को, एक मिनट, जस्ट वेट. Something is going wrong. Just a minute. This one. यही थ्योरम चल रही ना, यही 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 थे पेजेस. यस मैम. नहीं है ना? हाँ, जो कल आपने सेंड किए थे. ओके. सो वी वर ऑन द एग्जांपल्स. सो वहां पे जो इक्वालिटी है वो ठीक कर लीजिए. दैट इज व्हेन वी विल टेक z और z कॉन्जुगेट, दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर. यस. हाँ जी. उसके बाद देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, वो मॉड तो आपका साइड पे चल ही रहा है. सो इट इम्प्लाइज यहाँ पे जो इस जगह पे है, ये यहाँ पे दिस वन, ये अब आपका वाई आई कॉन्जुगेट है या वाई आई है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे आपका ये एज इट इज आ गया, राइट.
Now, this quantity, अब यहाँ पे हमने क्या use करेंगे? Now we have used here Cauchy's inequality. So this is less than or equal to summation I running from 1 to n mod of x square whole raised to 1 by 2 and summation I running from 1 to n mod of y square whole raised to 1 by 2. This is by 1, that is by Cauchy's inequality. Right? So therefore, what you have got the Schwarz inequality, that is the inner product of x and y is less than or equal to norm of x2 in norm of y2. 2 क्यों लगा है? क्योंकि we are talking in the L2n spaces. ठीक है? And L2n space is nothing but r raised to power n space. So now next example is deduce Schwarz inequality from the Bessel's inequality, right? So we know that what is the Bessel's inequality for finite cases? This is summation k running from 1 to n. देखो अगर I लगाएंगे तो E के साथ I की सबस्क्रिप्ट में I आ जाएगा. Now we have taken k, so this is summation k running from 1 to n inner product of x and ek mod square. This is less than or equal to norm of x k. ठीक है जी? If ek what k we have taken 1 2 3 so on up to n. So this is orthonormal set. Now for any vector that for any x belongs to h and y not equal to 0, हमने एक वेक्टर ले लिया y जो 0 के बराबर नहीं है. कल भी बताया था अगर कोई वेक्टर नॉन जीरो है हम उस वेक्टर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं. कैसे? उसको उसकी लेंथ से डिवाइड करके. सो वी हैव मेड अ एक हमने एक वेक्टर बना लिया जिसका नाम है e is equal to y upon norm of y. Then e, the singleton set e itself is orthonormal set y because the length of e is equal to 1. आप साइड पे लिख सकते हैं यहाँ पे because norm of e is equal to 1. आप कैलकुलेट कर लीजिए. कल भी हमने इस तरह का एक वेक्टर कैलकुलेट किया था. norm of e is equal to 1, right? उसके बाद then it implies इनर प्रोडक्ट ऑफ. अब देखो यहाँ पे ये जो पहला बेसल्स इनइक्वालिटी है बेटा, ये हर एक ई होल्ड कर रहा है. ई वो जिसकी लेंथ 1 है और ऑर्थोनॉर्मल सेट में आ रहा है. तो यहाँ पे इस ई के की जगह हमने क्या कर दिया? ई के साथ रिप्लेस कर दिया, राइट? और ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज वाई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई. उसी की ही कैलकुलेशन है. अब वेक्टर सिर्फ x और y है. स्केलर कौन है? नॉर्म ऑफ y. वो बेटे बाहर आ गया. ठीक है? अंदर आ गया इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, राइट? अब उसके बाद अब ये नॉर्म ऑफ y स्क्वायर बाहर आएगा और y स्क्वायर बाहर आके ये इधर शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ. तो व्हाट यू हैव गॉट इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x इनटू नॉर्म ऑफ y. सो दिस इज द रिक्वायर्ड Schwarz inequality. That's all. हाँ जी, is it clear to all of you? Yes, ma'am. दोनों